Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Naya Parvez from Electrical Engineering Department, and I am teaching you circuit and electronics in this course. So I hope you all guys are doing well, and I am audible to all of you properly. So it would be a introductory lecture. So because I don't have much introduction of all of you guys, and you don't have mine as well, so now we will try to introduce ourselves. We will somehow see the introduction of the course. Okay, and we will also learn what are the basic outcomes and objectives of this course. I hope that you all are getting me properly, as it is a repeated course. So let me see how it goes on. So let me share a few things with you. I did my BS in electronics engineering. I have my MS in electrical power engineering, and I have been serving CUI since 2012. I recently shifted to Saiwal campus. Before I was serving in Ahmedabad campus. So without wasting any more time, we switch towards the introduction of the course, in which we will see the CDF of the course, what is the textbook that we are going to follow, and later on we will see the first introductory lecture. So let me share the first thing, which is the CDF. So I hope so it is visible to all of you guys. So the course name is Circuit and Electronics. Triple E 1119 is the course code. It is a 3 credit hour course with no lab. So the textbook that we are going to follow. So basically this course has two major components. One is the circuits, that would be the electrical circuits, and second half we will discuss about the electronic devices that play a major role in the circuit elements. So the textbook that we are going to follow for the engineering circuit analysis would be 10th edition by J. David Irwin. I have the soft copy of it. Okay. इसके अलावा we can also follow the Alexander Sidiku and Matthew की जो book है, we can also follow it. ठीक है. So we will switch in between this Irwin and that of Alexander. For the electronic devices, we will follow Thomas L. Flight, and it can also be Boylsted की textbook भी हो सकती है. ठीक है. So ये हमारी अभी तक की course contents हैं जो कि design के, but later on we can have certain changes in it. So we will see how it goes on. So the course setting outcomes of this course would be, we would see the basic quantities of electric circuits, their fundamental concepts of the semi-circuit. We would have to apply different circuit analysis techniques to the different circuits, and we have to analyze the operation of electronic devices such as BJTs, diodes, etc. And we have to calculate the parameters of various techniques for the problems related to electric circuits and electronics. So this is your lecture breakdown, in which we would see on the first few lectures, first 80 lectures, we would see the analysis of the electric circuits, and then in the second half we will move towards the electronic devices and the courses. Okay? So you all know that circuit division, and you all know कि हमारे पास जो है वो लेक्चर की डिवीजन जो है वो कैसे होती है, how we would divide the percentage of quizzes, assignment, sessional 1 and sessional 2. So this is your textbook by Javed by Irwin, okay, and we are going to follow that textbook. So without wasting any time, we will move towards the electric circuits. Okay,
So we would have an introduction to the electric circuit. So first we would like to know what is an electric circuit. Electric circuit is basically an interconnection of the electrical elements. जब हम बहुत सारे electrical elements को या few electrical elements को जब हम interconnect करते हैं तो it forms a electric circuit and its function is to transfer energy from one point to another point. So see, this can be a simple electric circuit जिसमें हमारे पास एक battery source है, ठीक है, and we have a lamp is a load, it is a source, and in between हमारे पास क्या होगा, the current would start flowing from a source towards the load, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसकी वजह से हमने सोर्स को कनेक्ट किया, हमने लोड को कनेक्ट किया, ये इंटरकनेक्ट हो गए हैं और दरमियान में हमारे पास कोई करंट यहाँ पे जो है वो फ्लो कर रहा है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे वो ये है चार्ज का कॉन्सेप्ट, कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज द पावर, what are the circuit elements and what would be the energy that is going to be consumed in any electric circuit. So we're starting from the charge and we are seeing it as Q of T. So Q is basically the representation of the charge and T because this is the time changing quantity. जैसे जैसे हमारे पास जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो चार्ज की वैल्यू हमारे पास, चार्ज की क्वांटिटी हमारे पास चेंज होगी. So it is a basic quantity in any electric circuit. It is defined as the electrical property of the materials. So charge can be positive, charge can be negative. हमने already पढ़ा हुआ है that it can be proton, it can be electron. It is measured in coulombs, that is in C. And one electron is equals to 1 minus 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. If this is one proton, so it should be plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में हमारे पास डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स में हमारे पास डिफरेंट क्या है, दैट दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेन दीस चार्जेस मूव दैट दे वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट. सो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन व्हाट वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट की जो मूवमेंट है इट इज द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. मतलब हम इसको कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं कि जो मूवमेंट है चार्जेस की उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, हालांकि वी नो दैट प्रैक्टिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग तो इट शुड बी नेगेटिव, लेकिन कन्वेंशन हमने ऐसे बनाई हुई है कि हमारे पास जो है वो जो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट दे रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास हम नेगेटिव चार्जेस को कंसिडर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, ऑल्दो बोथ आर सेम बट सिर्फ उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस चार्ज, सॉरी आई हैव टू मूव दिस, ओके, दिस चार्ज मे बी कांस्टेंट और इट कैन बी वेरिंग, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास मूवमेंट थ्रू आउट सेम है और इट कैन बी कि चार्ज की जो मूवमेंट है वो दैट कैन बी वेरिंग एज वेल. सो इट वुड लीड टू अ डीसी दैट इज अ यूनिफॉर्म एंड इट कैन बी लीड टू द एसी दैट वुड बी अल्टरनेटिंग चार्ज. So the question is how many charges present by 46, how many charges represented by 46,000 electrons. So how you would solve it, because we know that one electron has minus 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So अगर हमारे पास 4600 electrons हैं, so we have to multiply it by this charge value and we will get the total number of electrons, that would be minus 7.369 into 10 raised to power minus 16 coulombs. So now what is the current? Current is represented by I with the representation of T. I of T इसको हम ऐसे करते हैं I of T because this is a time changing quantity, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिकल लाइफ में हैं तो हमारे पास सारी के सारी जो एलिमेंट्स हैं वो टाइम चेंजिंग है, वो यूनिफॉर्म अगर हुए भी तो वो डीसी के लिए यूनिफॉर्म है, सो दैट कैन बी T could be 0 but for most of the cases it could be dependent on the T. So time is so current is defined as the rate of flow of charge. It can also say as charge flow rate. It is measured in amperes A. एंड द करंट सिमिलरली जैसे हमारे पास चार्ज जो है वो कांस्टेंट और वेरिएंग हो सकता है, इसी तरह से द करंट कैन बी कांस्टेंट एंड इट कैन बी वेरिएंग. So the constant current is called as a DC current and the varying current is called as a alternating current, AC current, and I is nothing but this is dq by dt, where q is charge and d by dt represents change. So rate of change of charge is actually I, that is current. Next thing is voltage. Voltage is represented by V of t, small v, and t is again representing that this is the time dependent. And what is voltage? It is the charge rate of doing work.
So it is certain how that is the energy which is required to move a unit charge through an element. कि एक चार्ज को मूव कराने के लिए, सर्किट में मूव कराने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पोटेंशियल. इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स. वोल्टेज भी इसी तरह से, इट कैन बी कांस्टेंट means DC, it can be varying means it can be AC. And 1 volt is equals to 1 joule per coulomb, means the energy, if 1 joule energy is required to 1 coulomb charge to move through a circuit element, then it would consume 1 volt energy. So the voltage or potential would develop will be 1 volt. It is also can be 1 newton meter per coulomb. Newton meter हमारे पास कहाँ से आ गया कि joule can be also represented in newton meter. So voltage V, इसको ए बी हम लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि सर्किट एलिमेंट ए से बी तक मूव कराने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, इट इज एक्चुअली डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. डब्ल्यू इज द वर्क या एनर्जी एंड डी बाई डी क्यू इज रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल के टर्मिनल्स, हम वोल्टेज के टर्मिनल्स जो हैं वो अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी. मींस उनकी पोलैरिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी. सो द वोल्टेज दैट इज मूविंग फ्रॉम सर्किट एलिमेंट ए टू बी और इट इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ उनकी डायरेक्शन या उनकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. एक्सेस पावर. पावर एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम सर्किट एलिमेंट में, सर्किट्स में बहुत कॉमनली यूज करते हैं. एंड पावर इज नथिंग बट दिस इज द रेट, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब देखिए हर चीज में हमारे पास टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व है. हर चीज हमारे पास जो है वो रेट ऑफ चेंज है, टाइम का या रेट ऑफ चेंज है चार्ज का. इसलिए सारी की सारी क्वांटिटीज को हम ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आई ऑफ टी, वी ऑफ टी एंड पी ऑफ टी. पी जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है पावर की, एंड टी हमारे पास अगेन रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट. पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं इन वॉटेज में, ठीक है, डब्ल्यू में. अच्छा, अब पावर हमारे पास, इट कैन ईदर बी एब्सॉर्ब्ड बाय अ सर्किट एलिमेंट और इट कैन बी सप्लाइड बाय अ सर्किट एलिमेंट. कुछ हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स है जो कि पावर को सप्लाई करते हैं और कुछ एलिमेंट्स है जो उसी सप्लाइड पावर को क्या करें, कंज्यूम करें या एब्सॉर्ब कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सर्किट के अंदर पावर को सप्लाई करते हैं. जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी सोर्स एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो करंट सोर्सेज हैं या वोल्टेज सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो पावर को सप्लाई करते हैं. और कंज्यूम कौन से करते हैं, जितने भी लोड एलिमेंट्स है, चाहे वो रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कोई लैंप है, कोई मोटर लगी हुई है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी पावर को कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो हमारे पास क्या है, एब्सॉर्ब कर रहे हैं उस पावर को. सो पॉजिटिव पावर हमारे पास वो पावर है, जिस तरह से हमारे पास पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव नेगेटिव है, इसी तरह से पावर भी क्या हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव है. जो एलिमेंट्स पावर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसकी कन्वेंशन हमने क्या ली हुई है, वो पॉजिटिव है. और जो एलिमेंट्स पावर सप्लाई कर रहे हैं, मींस जो कि सोर्स एलिमेंट्स है, उसकी कन्वेंशन हमने क्या ली हुई है, नेगेटिव पावर ली हुई है. और ये जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, इसको हम वोल्टेज और करंट से देखते हैं. अब जो हमारे पास आइडियल सर्किट होता है, अकॉर्डिंग टू इट सप्लाइड पावर इज इक्वल टू पावर एब्सॉर्ब. मतलब कि एलिमेंट्स जितनी पावर सप्लाई कर रहे हैं वो सारे की सारी पावर हमारे पास क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है, मींस वो कंज्यूम हो रही है. एंड देयर आर नो लॉसेस इन द सर्किट. दैट इज फॉर द आइडियल केस, बट इन प्रैक्टिकल केसेस देयर आर नंबर ऑफ लॉसेस प्रेजेंट. कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस, काफी सारे लॉसेस होते हैं. तो आइडियल सर्किट के केस में तो ये हो सकता है सम ऑफ द सप्लाइड पावर एंड सम ऑफ द पावर एब्सॉर्ब कैन बी जीरो. For practical circuits में we would have a certain losses. So P can be say as dW by dt, rate of change of work, and dW, if अगर हम यहाँ पे dQ से जो है वो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो dW by dQ हमारे पास क्या है, V है, and dQ by dt हमारे पास क्या I है. So power can be represented in terms of VI. So product of V and I is actually giving us the power. और यहीं से हमारे पास पावर का साइन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास पावर एब्सॉर्ब हो रही है या पावर सप्लाई हो रही है, डिपेंडिंग ऑन के हमारे पास वोल्टेज और करंट के हैं पॉजिटिव या नेगेटिव है. सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. इट इज मेजर्ड इन जूल. ठीक है, और प्रैक्टिकल केसेस में जो हमारे पास बिलों में, हमारे पास बिल्स जो आपके इलेक्ट्रिकल बिल्स हैं उसमें हमारे पास आपने यूनिट देखा हो तो वॉट आवर में होते हैं. मतलब हाउ मच वाटेज इज कंज्यूम्ड इन एन आवर. ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी ही है लेकिन यूनिट थोड़ा सा डिफरेंट है. और 1 वाट आवर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3600 जूल्स के. सो एग्जांपल हमारे पास इससे रिलेटेड है. एन एनर्जी सोर्स, एक हमारे पास सोर्स है, ठीक है,
It forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb. ठीक है, एक सोर्स है, वो एक लाइट बल्ब को जो है वो 10 सेकंड के लिए 2 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर रहा है. If 2.3 kilojoule is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb. अब बल्ब की क्रॉस एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो अगर 2.3 किलो जूल है तो हमने इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, because we know that I is equals to dq by dt या delta q by delta t. तो delta q यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I into delta t. I हमारे पास 2 एम्पियर्स है और टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड्स है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 20 कूलम इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. एंड नाउ वी नो दैट द वोल्टेज ड्रॉप वुड बी dw by dq या डेल्टा w by डेल्टा q. डेल्टा और d दोनों रेट ऑफ चेंज ही है. ठीक है, तो हमें पता है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 2.3 किलो जूल है. तो किलो को हमने क्या लिखा 10 पावर 3 और हमारे पास डी क्यू हमारे पास क्या आ रहा है 20 कूलम्स है. तो यहाँ से हमारे पास 115 वोल्ट जो है वो एनर्जी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है अक्रॉस द लाइट बल्ब. अच्छा, अब हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स क्या होंगे. अब हमने देख लिया व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज एनर्जी. नाउ वी वुड हैव टू सी व्हाट आर द सर्किट एलिमेंट्स. ठीक है, सर्किट एलिमेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सर्किट. क्योंकि जो एलिमेंट्स ही मिलके इनके इंटरकनेक्शन ही मिलके हमारे पास क्या बना रही है सर्किट एलिमेंट्स या सर्किट्स बना रही है इलेक्ट्रिक सर्किट्स. अब टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स भी हैं. एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास वो सर्किट एलिमेंट्स हैं दैट आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जीज, जो कि एनर्जी जनरेट करें. इसमें सारे के सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है एक्टिव एलिमेंट्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्सेज हैं या वो करंट सोर्सेज हैं. इसमें हमारे पास बैटरीज भी हो सकती है सिंपल, या हमारे पास जनरेटर्स हैं. हर वो एलिमेंट जो हमारे पास एनर्जी जनरेट कर रहा है वो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स में आता है. और वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एलिमेंट्स है. ठीक है, अब पैसिव एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि इसी एनर्जी को जो कि जनरेट हो रही है इसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं. सी देखो, सर्किट में हमारे पास इंटरकनेक्शन एलिमेंट क्या, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं. सो इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी को जनरेट करें, पैसिव एलिमेंट्स उसी सर्किट में उस एनर्जी को क्या करें यूटिलाइज करें. इट कैन बी, अब पैसिव एलिमेंट्स हमारे पास कोई भी लोड हो सकता है, लाइट बल्ब है, कोई मोटर है, कोई रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर, इट कुड बी एनीथिंग. हर वो एलिमेंट उसी जनरेटेड एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा वो हमारे पास क्या है पैसिव. ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास जो है वो करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज आते हैं. अब सोर्सेज भी हमारे पास दो टाइप के हैं, दे आर इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड दे आर डिपेंडेंट सोर्सेज. इंडिपेंडेंट सोर्सेज एज इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम दैट डजंट डिपेंड ऑन अदर एलिमेंट टू सप्लाई वोल्टेज एंड करंट. मतलब ये इंडिपेंडेंटली जो है वो वोल्टेज और करंट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं. दे डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर सर्किट एलिमेंट. जबकि डिपेंडेंट सोर्सेज हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो कि हमारे पास जो है वो सर्किट एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सर्किट एलिमेंट में जो है रेजिस्टर लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी है या सोर्स उतना जो है वो हमारे पास यूज होना चाहिए, वो हमारे पास डिपेंडेंट है. अभी ये नेम से इंडिकेट हो रहा है कुछ इंडिपेंडेंट है कुछ डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे. लेटर ऑन वी वुड सी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है और कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एलिमेंट्स. अच्छा, इसी तरह से हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी है, कांस्टेंट करंट सोर्स भी है. कांस्टेंट एज इट इंडिकेटेड बाय इट्स नेम, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या करेंगे वो सेम वोल्टेज सप्लाई करेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स. कांस्टेंट करंट सोर्सेज के उनमें करंट जो है वो थ्रू आउट द सर्किट हमारे पास क्या होगा सेम होगा. अच्छा, so next is this is your example, calculate amount of charge represented by 2 million protons. तो वी वुड सी कि एक प्रोटॉन में हमारे पास जो है वो कितने कूलम होते हैं, प्लस 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, तो हमारे पास अगर 2 मिलियन है तो 2 इंटू 10 टू पावर 6 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद 1.609 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द आंसर. This is all for today. It was just an introduction, so I would also like to know the feedback of yours कि आप लोगों के पास कितनी already information है about circuits, about current, power, voltage and power. I hope so. इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक का कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप लोगों ने हमने मैट्रिक एफएससी में आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे. तो मैं आपका थोड़ा सा फीडबैक लूंगी इन द ऑनलाइन सेशन कि आप लोगों के जो है ना वो कितनी जो है वो आपकी
इनपुट है अकॉर्डिंग टू दिस, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लेटर ऑन जो है वो लेक्चर को डिसाइड करेंगे। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।